गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर एक बार स्वागत है डिजाइन डायलॉग्स में विद योगेश मार्केट। अगर अब तक आप देख रहे हो मतलब आई एम जेन्युइनली हैप्पी, आप बोर नहीं हो मुझसे। थैंक यू। टुडे विद मी आई हैव अ पर्सन who started her individual journey when India won the World Cup, that is 2011. But 2011 is not the beginning of her journey. She started way back in 2003. She faced all the struggles, she faced all the hurdles. First worked under a very established architect in Nagpur and then transitioned into her individual practice. And that does not mean that her practice was limited to the center in which she was working. She has worked across multiple states with different projects, be it residential, commercial, and of many sorts. With us today, we have Mrs. Samita Asai. Samita ma'am, welcome to this podcast. How are Thank you you? so much, Prithvi. I'm doing very well. How are you? I'm good too. I'm glad you're the first person who asked me. To start with, Samita ma'am, a lot of people now are becoming interior designers. You know, in 2025, we see a huge influx of students graduating into this field, be it architecture, be it designing, and all. You came back here in 2003, and I'm not sure enough that a lot of people would be opting out for this career. तब तो लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर. Amidst all of this, how did Samita Asai carve out her career? Interior design is a profession which can only be done who thinks out of box at that time, because in that area when doctors, engineers are quite in, that is the only professional field people are looking for it. So doing something different is my basic strategy till now also, till date also. So my father was very much into behind me that you should do interior designing. Though I was got admitted in MBBS, but due to certain circumstances, I never pushed myself to do again. So I into this interior designing field, and this field is more on the technicality part, where the architecture comes. So I'm more interested in architecture because being in an MBBS inclination, I really want to do something technically. So architecture fascinates me more than a creative part. So beginning starts with there only. Then I've started my very small projects in interior design, because for brain who is into more into academic and creative field is very different stream for them. So it is like what the technical person is going to do with this, क्या ये टाइम पास हो रहा Understand. है. हाँ. तो बहुत ही so that is the only thing which makes me slower down in my field. Otherwise, if I would be in MBBS also, it will be more, the journey could be entirely Very different. different. We might be having her today, but as Dr. Samita Asai. Maybe. And not architect and ID Samata. That's nice. Ma'am, if you were to share your academic experience as to तब क्या academics हुई करती थी, तब colleges क्या पढ़ा रहे थे और उसका कितना प्रभाव आप पे पड़ा while you were practicing. So for example, me, I'm a lawyer by profession, I'm not into business, but very interestingly मेरे 5 साल की कोर्स में एक भी court visit नहीं थी, कोई practicality नहीं थी. Is it the same when it comes to your course also? Of course, it do, because as you know, academic session is entirely different from the practical point of view. And my background is into academic family person, because my father was an HOD of botany department, my sister is a doctor, so all educational environment is around me. So education कुछ नहीं देखा सिवाय education के. If we are not trained to do household work. Very true. At that time. So and obviously students का आना जाना रहता, तो environment ही वैसा पूरा बन जाता था. Academics and theory. Academics and theory. And but the most challenging part for me is the practical life, because I don't belong to that community where there is a business oriented person to where I should look for key things are going to be done like this. So that was the big challenge for me, a very much big hurdle. And I haven't got any support from anybody. So the direction I'm not. Really scattered when there is a direction. So it's with beginning is a little bit slow, but after that I know once I'll Once you are reach into the the race, ladder, yes, yeah. I'll know what nobody will catch me. What I Understandable. feel. See. Very good. That is So that's where the passion comes, I should say. Mhm. So you should be, and कोई भी business हो, that should be passionate होना
बहुत बहुत जरूरी जरूरी है. है. एक जुनून चाहिए तो कुछ चीजें हो सकती है. Yeah, एंड दैट जुनून विल कंसिस्टेंसी इसी से मिलेगी एक्चुअली आपको. beautiful. मैम, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद का आपका फेज डिफाइन करना चाहें, दैट इज फ्रॉम 2003 इफ आई एम नॉट रॉन्ग टिल 2011, जब आपने खुद की प्रैक्टिस नहीं शुरू करी. मैम जनरली आजकल क्या होता है ना, व्हेनेवर डिजाइनर्स आर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज, ऑल ऑफ देम वांट देयर ओन प्रैक्टिस. कुछ कुछ तो बिना ग्रेजुएट भी माइट वांट टू हैव देयर ओन, व्हिच आई एम नॉट नो वन टू कमेंट ऑन इफ इट इज राइट और रॉन्ग, बट इट्स समथिंग व्हिच आई हैव बीन नोटिसिंग. So do you think this is correct in your opinion, or do you think one should take experience of, you know, a good chunk of time and then start their own? Of course, it's very essential. Nothing is easy. I should recommend young architects. They should work with some architects, especially into small offices Okay. where there is a growth. You can see the Chance growth, of growth is there. Chance of growth means you can enter into many tiny things also, Mhm. right from execution, right from site supervision, right from selection, right from the basic drawings. So for this, you have to devote time. Okay. Near about, I should say, there should be 3 to 4 years of practice. And being into service industries, I always used to say to my employees that in this industry, either you learn or you will earn. Okay. So you don't expect. If you want to earn, then you have to think above picture. That you have to think of sales target also. You have to complete the project within time. You have to take whole and sole responsibility of the project. Then only you can demand for more. Otherwise, learning ही इतना हो जाता है. We have to actually teach them the very basic thing. Mhm. So this thing, unless the conscious mind is aware of what exactly the execution procedure takes, so it will take its own sweet time. So I always recommend one of the girl very recently I've met with. She has just passed out her architecture, and she is asking me, ma'am, whether should I join BNI? But what you have seen till now, Exactly. how it will going to be fruitful for For you. you, exactly. First, you do 3 to 4 years of job with maybe 2 or 3 architects, Mhm. because you will get different kind of a culture Exposure, and culture. exposure, awareness, and everybody has their own culture. Mhm. So, and you never know which thing will Very true. click You might find your niche. Yes, Mhm. yes. And obviously, the even the firm where you're working, that also suits you or not in terms of your growth, what you are expecting. Mhm. So 2 to 3, if you can make it out with other offices, that It is will be recommended. good. And do the projects free of cost. Do the project whatever in very less amount. And it is a saying that unless you have done your 50 projects, you can't make your name in this industry. Okay. So that's the gist because I get this awareness. I room with other architects, Mhm. interior designers in other cities. I do panel discussions, so I talk with them. Mhm. So unless you are aware of what is going on around you, you can't able to say what actually the journey can Very true. turn out to be. So you found this common in most of the people you've interacted with in architecture, that they have taken experience first and then they've started their own practice. Yes, because you have to put your hardships. Mhm. You have to put your marketing skills also. You have to people know that what is the procedure of doing work Mhm. in your field. And every architect and interior design has their own strategy to do the work. Understood. Some are good in marketing in publicly. Some are not at all good in marketing publicly, but they do market in terms of their employees, in terms of all the product vendors who are They have a coming. system technically. They have different people have different streams. You never know which things will click For you. Yes. मैम, when it comes to architecture और डिजाइनिंग में भी जनरली मैम इसमें डिजाइनिंग सिखाई जाती है फॉर एग्जांपल, या फिर टेक्निकलिटी सिखाई जाती है, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो एंगल है शायद वो नहीं सिखाया जाता, जो कमर्शियल एंगल है आर्किटेक्चर का. आप डिजाइनिंग बहुत अच्छा कर पा रहे हो फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप दुनिया को ये बता ही नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो जानेंगे कैसे? Correct. मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फील्ड है पर्टिकुलरली, इसमें जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं ये दुनिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है. Exactly. क्योंकि इसमें इट इज वेरी टेक्निकल की जो दिखेगा वो बिकेगा, because it is all about design. It might not be the same for vendors maybe, because they have the material, not the idea or the creativity. True. But for you, you have the creativity and the idea. So, you know, in all of this,
No, how would you describe architecture or interior designing in your own words with this ample of experience that you've got? Giving something out of box is the gist, Mm-hmm. and that's the skill also to take it out from the client. That's So nice. doing something different which requires certain cost also, Very true. because 90% things are very much I mean, the structure is done, the functionality utility part is Mhm. taken care, but even the looks can be a little bit evergreen type, means most of the I people who understand. will likes that, but to put something unique is more important, so that takes time, I should Mhm. say. That takes more convincing power to make them realize Realize what do you that want. what I want, and it should be given, then only people will appreciate ki what extra what you have done, what is Exactly. the uniqueness in your design and who has done the design. Because that Ultimate site question. for you might lead to other different sites which you will get eventually. So Exactly. that has to be your masterpiece, is what I can understand. Exactly. But still, as architect Ashok Mokha sahib was Hmm. there, he said execution is just 5%, but the sorry, designing is the Hmm. only 5%, but the execution is the 95%. But the procedure, the flow of work should be as smooth as it could be. The Okay. journey should be smooth, so that the satisfaction point can be reached in very slow manner Slow and efficient manner. efficient In manner. which you and customer, both of you are in the same boat. Yes, That's yes. nice. Ma'am, but do you think designers should be more aware of the commercial angle also? Because even though designing is very good, but it might not fill your stomach, right? Ah. You need to earn for that. So, what would you suggest to these people who are not so well versed with the commerciality of this field? There is always a question, means expectation of the client is always higher than their budget. Okay. This is So the true. this is every time this is the fact, and it's not. I mean, they're right also in their own Because world. it is their whole and soul house. Yeah, of course, it's their dream project. Mhm. But education is more important, what I believe. Okay. They are not aware of the inflation rates Mhm. in our industry. Very They are true. not aware of The the cost of the executors, materials cost maybe. of the materials. So the education is more important. We have to guide them properly. कहाँ देखना है, कहाँ क्या चीज करना है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से तो वही एक बैलेंस क्रिएट करना ही डिजाइनर का काम होता है. मैम मतलब कन्विंसिंग एंड साइकोलॉजी भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है. बहुत ज्यादा. इट इज नॉट ओनली अबाउट डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन मे बी, बट दिस आल्सो एज इन कस्टमर रिलेशनशिप एंगल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स. और कस्टमर्स को नहीं पता होता है, दे आर वेरी ब्लैंक. वेरी ट्रू. कि उनको जाना कहाँ है. वो तो आते हैं कि हमारे पॉकेट में इतना है, लेकिन हमें इतना सब कुछ चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, बट वी हैव टू बी लिटिल मोर एम्पैथेटिक विद देम. मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे आपके साथ थोड़ी देर चलना पड़ेगा. What So you beautiful. want, what are your requirements, what is your thought process, then I should say okay, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे we step ahead, then they get to know. अच्छा, and most importantly thing, as a designer, as an architect, one should have that thing कि ये जो प्रोडक्ट नया आया है ये आप देख लीजिए. बिकॉज क्वेश्चन ऐसा नहीं अराइज होना चाहिए कि आपने मुझे ये बताया ही नहीं. ऑप्शन सारे आपके सामने रख दिए जा रहे हैं. सामने You may ये choose. yes, ये ए कॉस्ट का, ये बी का है, ये सी का है. दिस विल अगर ये करते ये प्रोडक्ट यूज करते तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा, या ये करेंगे तो आपको जरूरत नहीं इतने कॉस्ट की. सो वी कैन लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज ओवर हियर, या इससे भी कर लेंगे. तो अगर थोड़ा हाइलाइटर एक्सपेंसिव यूज कर लेंगे लेकिन बेसिक चीज लगा लेंगे तो तो balance भी हो अच्छा जाएगा. लगेगा. यस. एंड मोर ओवर आई थिंक इंटीरियर्स इज ऑल into balancing things, because सब कुछ चाहिए, पर सब कुछ चाहिए तो मिल नहीं कहाँ सकता. कम और कहाँ ज्यादा, इट्स Wow. वो हमारा लुकआउट होना ये चाहिए. शायद आपको सिर्फ एक्सपीरियंस आ सकता है. एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हाई से यंग लोग जो आते हैं तो उनको यही एक्सपीरियंस अर्न करने के लिए Wow. टाइम देना पड़ेगा. कैसे आपने पहले उसको पुट किया और फिर उसी को एग्जांपल के साथ जस्टिफाई. Yes. So beautiful. So we circle back to from where we started, but with much more knowledge. जो आप कह रहे थे एग्जांपल्स. Yes. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यंग आते हैं उनको एक या दो प्रोजेक्ट्स मिल तो जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिस्टम. जैसे कौन सा काम कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें तो हमको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है.
सोचना पड़ता है कि क्लाइंट को भी बताना है, तो सब उनको भी नहीं पता, उनको ये फास्ट हो जाता है, ये हो जाएगा, ये सब नहीं होता। देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ अ सिस्टम। मतलब आप पीओपी करोगे, फिर इलेक्ट्रिक, फिर पीओपी शीट से बंद करोगे, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, फिर टाइलिंग होगा, फिर बाथरूम्स होंगे, बाथरूम में कौन सा सिस्टम पहले करना चाहिए, पहले किस चीज़ का सिलेक्शन पहले होना चाहिए। एंड द वेरी मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस है, क्लाइंट शुड बी अवेयर ऑफ कि एक तो ट्रस्ट प्रोसेस होना चाहिए कि whenever you want to do certain project you should have trust on that professional भी, Faith. because डॉक्टर्स के यहाँ जाके हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, वेरी ट्रू, लॉयर्स को क्वेश्चन नहीं लॉयर्स को करते हम क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर करते डिजाइनर्स हैं। को क्यों नहीं? डिजाइनर दो इट्स लॉजिकल बट दे हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, और उसी के बेसिस पे वो इतने सब कुछ भी Very true. एंड दे हैव सीन सो मच ऑफ सीजन्स, जो भी मतलब बहुत कुछ देखा है उन्होंने। तो 100%. एक थोड़ा मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि वो थोड़ा सा उनके ट्रस्ट प्रोसेस पे, उनको उनके एक्सपीरियंस पे, एजुकेशन को पे। ट्रस्ट करिए और अकॉर्डिंगली वैसा जाए, एंड थिंग्स विल बी गोइंग आउट वेरी नाइसली। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने यहाँ पे नागपुर लेवल पे देखा है, once the advance is given तो they expect कि काम चालू हो जाए, but it's not the case। and how can you say that the ticket size is so big? Very true. मतलब घर बनता है या तो शादी होती है, ये दो चीज के बाद तो तीसरा आपका इंटीरियर आता है। हाउ कैन यू से दैट कि एक या दो कन्वर्शन से या समझ के चीजें वर्कआउट हो जाए? शुरू हो इट विल जाए। नॉट गोइंग टू डू दैट। we have to give that much 3 to 4 sittings। उनकी expectation, are they looking for aesthetic look, are they looking for utility and functionality look? उनका जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल की तरफ जाता है, या दे वांट समथिंग जैजी लुक? तो ये सब को समझने में भी तो 3 से 4 Sittings लगती सिटिंग्स है। लगेगी, तब जाके हम कुछ निकल आएगा। सो whenever there is, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडवांस दे दिया तो चलो पीओपी स्टार्ट कर सकते, वो कर लो। नो, एंड तक कौन सी प्रोडक्ट यूज होने वाले, इस सारी चीज का डिजाइन एक पहले ही 4 वॉल्स पे कैसा डिजाइन होना चाहिए, सीलिंग कैसा होना चाहिए, ये सारे इसकी डिजाइन पहले हो जानी चाहिए। दिस इज द कल्चर विच इज यूज ऑन पैन इंडिया। Okay. तो दैट इज अवर बैड लक कि हमको ये सब यहाँ नहीं मिलता, बट द सिस्टम शुड बी लाइक दैट ओनली। Because that is how it will be smooth. इट विल बी, एंड यू नो कि जब आप उनके साथ बैठते हैं तब आपको भी समझ जाता है कि इनके पॉकेट में कितना मनी है, ये कितना स्पेंड करना चाहिए, इनकी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है उनको कभी कभी ओल्ड फर्नीचर से इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि वो छोड़ते नहीं है। दे वांट कि वो रहे, वो कुछ रहे, essence रहे कहीं तो उसका। भी हाँ। उसको दिखना चाहिए कि हम हमारा या तो फिर एंसेस्ट्रल कोई फर्नीचर यूनिट होता है। तो ये सारी चीज़ों का भी मतलब मैं बोलती हूँ ये सब इमोशनली इंटैक्ट होता है। पर्सन साइकोलॉजी, उनका ड्रीम होम, उनकी जो कुछ चीजें होती उनका बजट, ये सारी उनका चीजें। बजट, सो ऑल इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। एंड इवन जो वेंडर्स हम जिनके साथ काम करते हैं, उनसे भी काम निकलवाने का भी कुछ टाइम्स होने चाहिए। दे ऑलवेज शुड नॉट बी स्कोल्डेड, ये क्यों किया, वो क्यों किया। आई वुड से अगर किसी वेंडर में प्रॉब्लम हो तो आई विल ब्लेम माई सेल्फ, Okay. either I have not used the proper person or he is not professional। Very true. Why there is always तोड़ा फोड़ी होता है हमेशा, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आता। When vendors are yours, drawings भी आप ही की तरफ से जाते हैं। मिसकम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है? मिसकम्युनिकेशन क्यों होता है? Because it's ultimately a waste of time, energy and Resources. the cost, of course, Very resources too। Very true. Now, this brings me to my next question again. That, I believe जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए हैं अब तक भी, इसके पहले भी, one thing which I've been noticing in all the answers which I've got is कि इसमें एक MBA छुपा है आपके वर्क में, आपके प्रोफेशन में। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन छुपा है, एक मैनेजमेंट स्किल छुपी है। When it comes to you managing the agencies, maybe when it comes to you managing the vendors, when it comes to you managing the site, or you come managing the customer. So how do you manage everything again? So आज ये पीओपी वाला नहीं आया, कारपेंट्री में लेट हो गया, टाइलिंग अच्छे से नहीं हुई, बारिश आ गई, एक्सटर्नल सर्कमस्टांस आ गया, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बट यू माइट बी द फेस फॉर द कस्टमर। सो हाउ डू यू फेस दिस, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दीज पीपल? मतलब कितना पेशेंस लगता है और क्या आपका प्रोसेस है टू जेल विद एवरीवन? फर्स्ट तो पॉजिटिव होना तो होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आई डोंट थिंक सो
कोई मेरे जितने भी वेंडर्स हैं, किसी ने ऐसा आज तक नहीं बोला कि मैम आपके साथ काम नहीं करना है, Mm-hmm. बिकॉज मेनी थिंग्स आर देयर एंड द ह्यूमैनिटी इज द मेन जिस्ट. Wow, so beautiful. ह्यूमैनिटी इज द मेन. व्हाई टू मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना और वहां से चालू करना और फिर अच्छा बहुत सारे काम है, ये भी है वो भी है, ठीक है, पर द रियलिटी पे बात करेंगे तो ज्यादा मजा आता बेटर है. होगा. whether you or me, whoever so may be. Mm-hmm. तो और शेड्यूल पहले ही तय कर दूं कि और कंसर्न्स, किसी के कंसर्न होता है कोई क्लाइंट के कि मुझे टिल डेट कंप्लीट करना है, किसी को बोलते हैं मेरे को इतना कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से Flexible कर रखो. लीजिए. बट व्हाट हैपेंस, लेकिन क्या होता है ना जर्नी में, जैसे जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शंस आते हैं, डिज़ाइन बनती है, उनको जो पसंद आता है, कभी कभी 11th आवर पे कुछ ऐसे मतलब प्रोडक्ट चेंज होते हैं. एग्जाम्पल शेयर टू, जैसे कुछ एमडीएफ में वर्क करना है, Hmm. डिसाइड तो हो गया कि हाँ ऐसा कुछ अच्छा भी लगा एंड हाँ लुक भी है, कर लेते. बट एक महीने बाद आपको पता है कि विंटर आने वाला है, रेनी सीजन आने, इसको सूखने को टाइम लगेगा, Mm-hmm. इसका कस्टमाइजेशन डिजाइन करने को अपना टाइम लगेगा. सो इट विल टेक्स, एक रूम का भी करना है तो नियर अबाउट 1 month का डिले हो जाता है. तो आर द क्लाइंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर तो दिस? डीले. तो ये डिजाइन तो शायद आपको डीले के बाद ही दिखे, बट यस. एंड ऐसा होता है ना बिकॉज अब तक वो उस शूज में आए ही नहीं रहते हैं ना. क्लाइंट जब जर्नी चालू होती है तब ही इज गोइंग टू सर्च फॉर इट. अच्छा ये भी है वो भी है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं. एंड होते इवन मैं तो 5-10% मैं भी चेंजेस करती हूँ एंड इवन क्लाइंट के भी कुछ आते हैं, ये ग्रे कलर पसंद नहीं आ रहा, दो 3D व्यू बन जाता है फुल, पर नहीं पसंद आता है, फिर उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते. आई हैव दैट श्योरिटी कि वो भी चीज बुरा नहीं लगेगा, बट होते हैं, इट हैपेंस. तो सो मेंटली प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर होना मेंटली इम्पोर्टेंट. इट्स यस. हम जितना मैं समझ ही पा रहा हूँ आपके जवाब से, इट इज मोर लाइक यू हैव टू बी वेरी मेलिएबल, एज इन आपको ढाना बहुत जरूरी है उनके ओपिनियन में, उनके सुझाव के साथ. आप रिजिड होके काम नहीं कर सकते कि नहीं ये डिजाइन है तो यही है, मैं यही करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी. Yes, इट डज and नॉट वर्क. communication is the key, एग्जैक्टली. and that too in stages. तो आपको अवेयर भी रहना है साइट पर क्या चल रहा है, उसके जवाब भी आपको पता होना चाहिए कि आज ये आया नहीं तो क्यों नहीं आया, या फिर ये काम हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ. और rather ये सब होना ही नहीं चाहिए when things were reversely calculated. जैसे मैंने कहा डिजाइनिंग हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, बिकॉज कौन सा प्रोडक्ट हम कभी बॉम्बे से मंगाते कभी दिल्ली से, इट विल टेक इट्स ओन टाइम. वेरी ट्रू. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ये सब जो चीज मैं बोल रही हूँ, ये मुझे सब एक्सपीरियंस से ही आया है ना. Exactly. हमने गलती करके सीखी है तभी ये चीज हो पाती है. तो गोइंग फॉर सच एक्सपीरियंस पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट रादर गोइंग फॉर एनी न्यू कमर्स. अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि they've seen this and they've learned this the hard way. या वेरी ट्रू. और उल्टा आप तो न्यू कमर्स को भी ये रिकमेंड कर रहे हो कि लर्न इट दी हार्ड वे. यस. बी अंडरनीथ सम पीपल, बी अंडरनीथ योर सीनियर्स मे बी एंड ऑल. राइट. अब दो चीजें अक्सर हमें देखने को मिलती है ऑन द कस्टमर फ्रंट व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग. पहला तो एक जनरल एक एजेंडा ऐसा होता है कि आप कितने विजिट्स करेंगे साइट पे. अब हर कोई चाहेगा कि मेरा घर बन रहा है तो पूरे समय आर्किटेक्ट के डिजाइन मुझे ही समझ और कोई साइट पे ना जाए, मेरा घर है ये वो. बट आपके साइड से भी वो पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव मल्टीपल projects at one time in multiple parts of the city, or for you maybe multiple part of the state or the country. Yes. Be it Punjab, or be it Maharashtra, be it Hyderabad, etc. So is there a standard definition of the number of visits which an architect should give or can give, or how do you tackle this situation? Yes. Recently, there is one of the project. The client is also asking me the same question: how he is going to handle it? That I understand because it's a new thing for them also, for me also, and to gel up is another thing which Exactly. requires certain time. So I straightforwardly tell to them in the beginning, it's very important to meet frequently. Okay. So because to understand each other is more important, and that gives suggestions, viewpoints, everything is important. So थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. यू हैव टू बी लिटिल एम्पैथेटिक, उनकी सोच क्या है, क्या करते हैं. एंड वन द ट्रस्ट प्रोसेस जब बन जाता है तो आपको बहुत उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आफ्टर दैट देयर विल बी अ लॉन्ग गैप एंड क्लाइंट विल बी सेटिस्फाइड. लॉन्ग गैप इन द सेंस कि काम तो हो रहा है बराबर, मैम ने इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, टीम भी बराबर काम कर रही है, जो जो बात हुई थी वो सब हो रही है.
तो वो एक ट्रस्ट प्रोसेस बिल्डअप होना चालू कर देते। देन आई शुड से कि स्टार्टिंग में तो मैंने टाइम दे दिया, अब मुझे बीच में थोड़ा सा, मुझे इतनी जरूरत नहीं है व्हेन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी रेडी, कारपेंटर एग्जैक्टली, वो स्ट्रक्चर, तो टेक्निकली वो टेक्निकली नहीं, सिविल जैसे का है सब कुछ, यस very जैसा true. ड्राइंग में दिया है वो सारी चीजें हो। हम्म, लेकिन एंड में फिर से जब फिनिशिंग पार्ट आता है, अगेन आई विल बी, more आई विल active. लुक, आई विल रिक्वायर योर टाइम हम्म, कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, हम्म, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स माई प्रोफेशन, आई नो इट थिंग्स विल बी डन वेरी स्मूथली, बट जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो हमारे फेस पर टिका हुआ था। जब हम वहाँ होते हैं तो सब खुश रहते हैं, जब सब नहीं खुश होते हैं रहते हैं, तो तो वो चीज़ है, तो हम बोलते हैं फेस वैल्यू ही हम हमारे लिए अर्निंग है। वेरी गुड, अंडरस्टैंडेबल। मैम दूसरा एक सवाल होता है टाइमली डिलीवरी के ऊपर। यस अक्सर जब भी कोई घर बन रहा हो या कुछ भी हो, ये गिवन सी चीज है कि 2 से 3 महीने का बफर तो लगता ही है। यस हर चीज ऑन टाइम होने के बाद भी कुछ इनऑर्डिनेट डिलेज आ जाते हैं। बट मैम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट शायद 3.5 साल चल जाए, 4 साल चल जाए, कोई हो जो 1.5 साल में पूरा भी हो जाए। तो ये कस्टमर को आप इस सिचुएशन में कैसे मैनेज करते हो जब डिलेज इतने सारे होते हैं? मैंने जैसे कहा, कम्युनिकेशन इज द, बता के रखना। बता के रखना। अगर आप वेंडर मेरे लेंगे तो ये काम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में हो जाएगा। आपने अगर कोई एग्जीक्यूटर लाए तो आई कांट गारंटी। इट विल नॉट बी योर्स क्योंकि आप जानते नहीं हो कि काम कैसा है, क्या है। एग्जैक्टली, वो भी है। एंड दो दे आर अ लेबर, वो कभी रिपोर्ट करते कभी नहीं करते, मेरी टीम ऐसा करेगी नहीं, बिकॉज मैंने काम दिया है। अल्टीमेटली दे आर द कॉन्ट्रैक्टर्स, दे नो हु इज पेइंग देम, हु इज द डिसीजन मेकर, तो वो फ्लो ऑफ वर्क वैसे ही रखते हैं। अगर हमारी टीम होती है तो दे हैव ऑल, मतलब मैम का ही इलेक्ट्रिशियन है, मैम का ही कारपेंटर है, मैम का ही पीओपी, तो उनकी बॉन्डिंग बनी रहती है। कभी भी कुछ काम रुक जाता है तो वो एक एक दूसरे को कॉल करके बुला लेते हैं, तो फ्लो ऑफ वर्क अच्छा मिलता है। बिकॉज मेजरली आई हैव टर्न की प्रोजेक्ट्स, तो क्यों टर्न की प्रोजेक्ट्स जल्दी होते हैं? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स, तो चीजें डिले smoothly नहीं होती आता हैं। है। यस, अभी क्लाइंट होता है, ही इज ऑल्सो ट्रू कि वो किसी कोई एग्जीक्यूटिव के साथ नेगोशिएट करेगा, बट हमको पता है कि इस एक बंदे का अगर 3 लाख रह रहा है, कोई बंदा 4 लाख रह रहा है, तो उसका डिफरेंस कहाँ पे? और अगर उनको चाहिए कि सिंस इट्स अ कंसल्टेशन, तो हम बोल देते हैं ये बंदा 3 लाख मांग रहा है, ये बंदा 4 लाख मांग रहा है, लेकिन 3 लाख वाले का टाइम आपको ज्यादा लेगा, या उसके पास उतनी टीम नहीं रहेगी, इसलिए वो या कम इसका मिलेगा। सर्विस इतनी अच्छी नहीं रहेगी, हम्म, इसीलिए उसका कम है। और 4 लाख को तो आपको मतलब कुछ सवाल करने की जरूरत ही नहीं, हम्म, और स्मूथली प्रोजेक्ट हो। इफ थिंग्स यू आर क्लियर इनफ, ये या ये, it's up to आपके you। ऊपर है, मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए। मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए, होता है ऐसा। Now moving on from this to something which I believe आपका सबसे powerful weapon है, which I genuinely get inspired from you a lot for, is networking and making connections. One thing which intrigued me the most to call you to this podcast has been, the way you've connected to people, the way you know people, you know a lot of people in the industry, outside the industry, you connect to them, you gel with them, you interact with them. Ma'am, how important is it to make connections in the 21st century? I, for me, I should say it's very easy. Easy in what sense? Because all are humans. They have their common perception towards life, and every person has different stories. So, and I always say that there is nothing as such enemy, because just sit with them, you share your stories, you listen to them. What is enemy? There Very is true. nothing as such. Everybody have their own challenges, problems in life. Mhm. Only three things are required from you and me. That is motivation, appreciation, and acceptance. Wow. If these So true. things are taken care, I don't think so. Relationship needs more of the So definition. this makes it effortless. Yeah, it makes it effortless. And for the networking, as you are saying, that listening to people and their stories and learning from them is Very more what I should say is more impressive for me. Oh wow. So that's the thing I learned from them. And everybody means, don't think it's my actually from a very childhood, I can't see the negative things in Amidst anybody's people and person. situations. It's all about all positive things what they have. Just learn from them and go ahead. Wow. Ma'am, you've been very, popular when it comes to the BNI circle. You've been very vocal in it.
you've met a lot of people, you've shared your experiences. जो ये यंग आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स जो शायद इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे कनेक्शन बिल्डिंग में, नेटवर्किंग में, आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हो आपके एक्सपीरियंस है ऑफ हाउ यू मेट सो मेनी पीपल इन सच शॉर्ट स्पैन एंड गिवन रेफरेंसेस टू देम Yes. in such huge amounts? See, whenever there is a young entrepreneur, they have their own challenges. Very true. From take out the work, it will be more challenging comparatively the experienced one. But as I said, communication is the key. आप अवेयर करते रहो ना उनको, ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा. दे लिटरली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मी. मैम अब बताइए आप ऐसी सिचुएशन तो क्या करेंगे. कोई चीज यू हैव टू लेट गो सर्टेन थिंग्स. बहुत सारी चीजें आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं. दो द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको निकलवाना है, और उस निकलवाने के इसमें आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस एज us. Understand. So they have their own loopholes. उनमें कुछ माइनस प्लस पॉइंट डेफिनेटली रहेंगे, पर अगर हम एक्सपीरियंस लोगों के साथ उनके साथ अगर कंपेयर किए जाए तो दे आर वो चार्ज जो अमाउंट चार्ज करेंगे वो हमेशा कम रहेगा. Very जो true. कम रहेगा वो कहीं ना कुछ तो कंपेंसेट देगा. कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा. तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. बस कम्युनिकेट करते रहो कि इसके बाद ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, एंड देयर इज ऑलवेज थोड़े थोड़े टाइम पे उनको गाइड करते रहो कि इसके बाद ये, उसके बाद ये. तो मेरे को लगता है शायद किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. वाओ, मतलब जितना ट्रांसपेरेंट आप रहेंगे यस विद द कस्टमर उतना एफिशिएंटली आपका काम होगा. यस यस. नाइस. मैम, नागपुर में साइट्स करना, यू नो, आप उसको अपने बैक ऑफ द हैंड जैसे जानते होंगे, ये आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है. बट जब डिफरेंट स्टेट्स पिक्चर में आते हैं, डिफरेंट सिटीज आती है जो महाराष्ट्र के बाहर की है, डू यू फील एनी डिफरेंस देयर एंड योर when it comes to the people or the agencies or the purchasing power maybe? Yes, there are a lot of differences. I should say, from Nagpur point of view, Nagpur people are very smart Okay. in terms of their workmanship. Mm-hmm. Whether they are the workers, whether they are architects or designers, Okay. and they can do जुगाड़ू रहते हैं, किसी भी इसमें काम कर लेते हैं. Wow. तो that is the most मैं कहीं पे भी जाती हूँ किसी भी सिटी में तो ये चीज़ तो होती है, और हर चीज़ हमेशा नागपुर की तारीफ ही होती है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. +1 नागपुर. नाइस. सो ये चीज़ है. और बाहर जाओ तो थोड़ा सा वर्कमैनशिप का है प्रॉब्लम, ओके. बिकॉज एक तो मेट्रोज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एवरीबडी हैज, दे आर यूज्ड टू विद द कल्चर. हर चीज ड्राइंग्स अप टू डेट हो जाती है. अभी जैसे मैंने एडिफिस करके एक कंपनी है विच इज हैविंग ऑफिसेस ऑन पैन इंडिया, वहाँ 1 लाख स्क्वायर फुट पे काम किया है. तो दे हैव देयर प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ इंडिया. मोस्टली ताज होटल के आउटलेट्स पे काम किया, हाइपर सिटी जो थाने में है उस पर काम किया. उस स्केल के अपने चैलेंजेस होते हैं, बट फिर आउट ऑफ कंट्री जब चीजें हो सकती है तो हम तो इंट्रा सिटीज में बात कर रहे हैं. तो ऐसा क्या होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल है, आपकी ड्राइंग्स अप टू डेट है, और आपकी पास जो टीम है वो परफेक्ट है, तो फिर कहीं कुछ दिक्कत नहीं जाती. एंड एवरी सिटी हैज दिस ओन कल्चर. आप नागपुर से किसी और सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते. और वो भी मैं बताऊंगी कि मैं अगर बाहर के सिटीज में हम ऐसा सोचते हैं, और ये सोचना गलत भी है कि आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स की गलती होती है या ऐसा कुछ नहीं. आप उनके वर्कमैनशिप वालों से भी बात करो ना, आप उनके उस टाइप के क्लाइंट के माइंडसेट से भी बात करो. जब आप ये 3 चीज आप स्टडी करोगे तब आपको आउटपुट मिलेगा कि नहीं ये कल्चर में इस तरह से काम होता है. And to entering into such kind of environment as a third person, it is difficult. So it's better to have your team so that आपको workflow अच्छे से मिल सके. That's nice. Because everything आपकी ट्यूनिंग अच्छी से होती है. ड्राइंग्स का एक तरीका होता है किसी आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स का, तो वो आपकी टीम को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. और कोई भी आर्किटेक्ट या डिजाइनर ये चाहता है कि कुछ तो भी ऐसा प्रोडक्ट लिया जाए जो कभी किसी ने किया नहीं है, देखा नहीं है. एज मिल जाए ड्राइंग को. हाँ, तो आई शुड से आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स को सबसे ज्यादा एनर्जी तब डालनी पड़ती है जब कुछ यूनिकनेस आउट ऑफ द बॉक्स. अदरवाइज 80-90% तो वही चीज है, सिमिलर चीज है. कॉपी तो नहीं बोल सकते, बट मोस्ट रिपीट होती है. यस, अंडरस्टैंडेबल. वाओ.
मैम जनरली हर किसी के करियर में टेन्योर में ऐसा कोई एक टाइम आता है जब यू नो दे दे आर लैगिंग बिहाइंड और दे फील दैट दे आर डीमोटिवेटेड एंड देन कम्स द टर्निंग पॉइंट Yes. जहाँ से चीज़ें एकदम बदल जाती है जहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे धोनी की बात करें 2011 में मैंने बोला आपने आपका शुरू किया है वर्ल्ड कप जीते फॉर धोनी इट माइट बी 2007 T20 वर्ल्ड कप जहाँ से चीज़ें उसके लिए बदली फॉर एग्जांपल या फॉर आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इट माइट बी 2014 इलेक्शंस व्हाट इज दैट समथिंग व्हिच रेजोनेट्स विथ यू कि आपने वो कुछ चीज़ें करी या कोई एक चीज़ करी एंड फ्रॉम देयर यू ट्रांसफॉर्म्ड एज एन इंडिविजुअल और एज अ प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल, कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट हो, कितना भी बड़े डिजाइनर्स हो, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं ओके बिकॉज ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशन। आज है कल नहीं है, या इतने बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं, या और फिर एकदम नहीं आते या नहीं आते, मार्केट ही इतना वायबल नहीं है कि काम कर सके। और ऐसा तो सबके साथ हुआ, तो मैं तो Okay. बोलती दिस इज द ब्लेसिंग। व्हाई ब्लेसिंग? ये टाइम होता है आपको कुछ लर्न करने का और अपने कंफर्ट जोन से निकलने का। Wow, so beautiful to find a silver lining in everything. Samita, I'm crazy, crazy. सो दैट्स द टाइम वेयर यू लर्न गो एट डिफरेंट प्लान। आपको अदरवाइज आप अपने प्रोजेक्ट्स में इतने एंटेंगल रहते हो, हाउ विल यू विल डू? जैसे मैं करती हूँ पैनल डिस्कशंस हो गए डिजाइनर्स के साथ, आप वहां से सीखते हो, आप कॉम्पिटिटर्स से सीखते हो, अदरवाइज लोग बात ही नहीं कर रहे, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, इनसे क्या सीख लेंगे? Exactly. व्हाई दैट काइंड ऑफ Attitude. हेजिटेशन इज देयर? हम्म। क्योंकि उनमें हो सकता है ऐसी कुछ चीज निकल आए जो आप में नहीं है, नहीं और आप सीख आपने पाओ सोचा जो भी चीजें सीख भी नहीं। इवन आई अटेंड एग्जीबिशंस व्हिच हेल्ड ऑन पैन इंडिया, तो मैं तो बोलती हूँ ये आपका टाइम ही इतना अच्छा है कि आपको ये सब एक्सपोजर को टाइम देना मौका मिल चाहिए रहा है है, और मौका भी मिलता है तो व्हाई नॉट यूज इट? बस वो बोलते हैं ना, वो कहीं रुकना नहीं चाहिए गाड़ी, वाह। जस्ट कीप वॉकिंग। मतलब एवरीथिंग फॉर यू इज डिसाइडेड आपको बस चलना है बस, यस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम अपने कंफर्ट जोन में इतने इन्वॉल्व सुस्त हो जाए जाते हैं कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। अनलेस यू विल टॉक टू सम पीपल विच इज डूइंग आप ही के जैसे काम कर रहा है लेकिन किसी अलग तरीके से कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ सीखो, या ऐसे कुछ लोगों के पास बैठो जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि इस फील्ड में कुछ काम हो सकता है क्या। यू नेवर नो विच आइडिया विल क्लिक यू। एग्जैक्टली अदरवाइज हमको सीखने का क्या मौका मिलता है? इवन आई हैव अटेंडेड जो स्पीकर्स आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, जो आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स, उनसे सीखो, उनके सेमिनार्स में जाओ, तो आप जब वहां से वापस आओगे ना, यू विल बी एंटायरली डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट इंडिविजुअल आप वर्कशॉप्स अटेंड करो जो आपके मटेरियल्स, जैसे कि मे बी क्ले, मे मेटेशिया बी मड से कुछ होते हैं, या केन या बैम्बू से। तो आप अगर ऐसे मटेरियल से आपको समझेगा उनकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहाँ तक मोल्ड हो सकते हैं, क्या चीजें उससे बन सकती है। सो दिस क्या इज होता है और पार्ट कोई ऑफ चीज आपके दिमाग में खुले उस चीज से यस यस डेफिनेटली। दैट्स नाइस मैम व्हेन यू जनरली एक बार आपकी जर्नी आप हमें साझा करिए फ्रॉम डिजाइनिंग टू एग्जीक्यूशन टू डिलीवरी क्या क्या चीजें आप जनरली यूज करते हैं आपके सिस्टम में इससे क्या पता जो ये देख रहे हो वो कुछ दो चीजें सीख सकते फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ मेकिंग द डिजाइन टू सिलेक्शन यस टू रिमूवल एंड टू डिलीवरी यस। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं हमेशा रेडी करती हूँ जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है। सो मैं क्लाइंट को पहले पूछती हूँ कि उनका घर कहाँ है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और आफ्टर द 5-10 ईयर्स वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, एंड व्हाट आर द किड्स डूइंग। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है ना वो। एंड दीज थिंग्स विल अल्टीमेटली हमको जज कर सकते हैं कि हम ये इतना एक्सपेंड कर सकते हैं। इनका एक्चुअली मैं बोलती नहीं हूँ कि कितना बजट है, आई शुड से कितना इंटरेस्ट है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो 2-3 करोड़ का भी फ्लैट लेते हैं पर 10 लाख भी खर्चा नहीं करते हैं, और जो 40 लाख का फ्लैट लेते हैं वो 20 लाख भी खर्चा कर देते हैं। तो सबका अपना तरीका होता है। बट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एग्जैक्टली। वेरी मैम ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ आउट ऑफ ऑल द इंटरव्यूज आई हैव टेकन आई बी वेरी फ्रैंक कि किसी ने खुद के क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है सो डिफरेंट एंड सो अमेजिंग टू टू लर्न कि मतलब जनरली क्या होता है अगर मैं भी कोई डिजाइनर होता फॉर एग्जांपल
तो मैं शायद ये नहीं सोच पाता कि क्या पता मैं अगले का इंटरव्यू लूँ, इंटरव्यू नहीं बट अगले से कुछ चीजें पूछ के अपना एक सेटअप बना लूँ। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो आके हमसे पूछेगा क्योंकि हम प्रोफेशनल है, वो कस्टमर है, पर आपने तो सिस्टम ही पूरा उल्टा कर दिया, एंड व्हिच इज सो अमेजिंग एंड अगेन आउट ऑफ द बॉक्स। यस, सो उनसे तो निकलवाना पड़ेगा ना उनको क्या चाहिए, क्योंकि क्या है उनके पास तो मतलब 10 साल बाद इंटीरियर करते हैं या कभी शायद 15 साल बाद। बात करते अगर हैं। हम नागपुर लेवल की बात करें, ऐसे लोग भी मैंने अदर सिटीज में देखे हैं, या मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी है जो हर 5 years में अपना इंटीरियर चेंज करते हैं इफ इट्स अ रेसिडेंशियल। और कमर्शियल तो मैं तो बोलती हूँ कि आपको 3 साल में तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी वो अप टू डेट रहेगा। अप टू डेट रहेगा। अभी तुम जाओगे कितने बार एक ही रेस्टोरेंट में जाओगे, सही 3 बार 4 बार, एम्बियंस सेम हो जाएगा। एम्बियंस सेम हो जाता है। या आप उतना ही खर्चा करो जिसमें आप 3 या 4 साल बाद कुछ चेंजेस कर पाओगे नए लुक के लिए, सो पीपल ऑलवेज फील वेलकमिंग कि कुछ तो नया देखने मिलेगा, कुछ तो नया Exactly. एम्बियंस है। तो दिस इज द मस्ट। जो थोड़े प्रोग्रेसिव सिटीज है वहाँ पे ये चीज होती है। एंड आप देखिएगा वेन एवर यू विल डू योर इंटीरियर्स, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा किसी को लेके। क्योंकि आपको उस घर में दिन रात सुबह शाम रहना है, वो घर आपकी थिंकिंग इम्पैक्ट करेगा, आपका रहने का तरीका, लोग जो आएंगे उन पे इम्प्रेशन वो चीज बनाएगा। आपके शब्दों के पहले आपका चरित्र लोगों पे इम्प्रेशन बनाता है, फिर ही तो आप बोलते हो कुछ। इस बार तो आप किसी को देखते हो तो पहले तो घर दिखता है, यस, फिर घर वालों से बातचीत होती है शायद। तो हाँ, लेकिन इसलिए फिर भी हम घर को देख के हम जज नहीं कर सकते कि इनको क्या कैसे देना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। एक कल्चर जरूर होता है, जैसे कि उनके यहाँ आज मेड नहीं है, एग्जाम्पल बता रहे, पर कल को उनका घर बनेगा तो उनके यहाँ 2 मेड उनको रखना है, फिर उनका प्रोविजन कहाँ पे देना है, एग्जैक्टली। वो कौन से वॉशरूम्स यूज करने वाले हैं, उनका स्टोरेज कहाँ रहेगा, या फिर उनके लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें तो होती है। विजन इज समथिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप कोई भी चीज प्लान कर रहे हो। एग्जैक्टली, एंड आई मेरा तरीका ऐसे, आई डोंट ओवर शूट माई बजट बिकॉज अल्टीमेटली इट विल हार्म मी, माई प्रोफेशन एज वेल एज मी, कि मैंने जस्टिफाइड चीज नहीं दी। तो इन सब को क्लियरिटी लाने के लिए ये सारी चीजें रिसर्च की जाती है उसके पीछे। सो दैट्स द थिंग। अब जब मटेरियल सिलेक्शन की बारी आती है, सो दिस इज वेरी टेक्निकल अगेन नाउ। फॉर एग्जांपल क्लाइंट माइट से कि मैं इनको जानता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। यू एज अ प्रोफेशनल माइट बी नोइंग सम पीपल जिनसे आपने काम किया, यू ट्रस्ट देम कि आज के मार्केट में दिस क्रेजी कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, मटेरियल्स बहुत मिक्स हो रहे हैं, यू नो, डुप्लीकेसी काफी बढ़ चुकी है, डुप्लीकेट चीजें बहुत आ गई है, फेक चीजें बहुत आ गई है। अमिस्ट ऑल ऑफ दिस एज अ प्रोफेशनल आप मटेरियल सिलेक्शन किस तरीके से करते पहले तो मैं उनको सर्वे करवाती हूँ हो? प्रोजेक्ट चालू होने से पहले। आप पहले देख लो क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं कुछ शोरूम्स में उनको भेजती हूँ, क्योंकि क्या एक उनको भी आइडिया आ जाती है कि अच्छा अब आजकल में ऐसा सोफा चाहिए, ऐसे होम डेकोर होता है, ये स्टाइल होता है, ये ट्रेंडिंग है, ये कलर्स है। तो उनको वो उसके इफेक्ट्स जो है वो मतलब इन आउट समझ जाते हैं I कि understand. एक तो मैम का टेस्ट कैसा है, या मैम हमको प्रॉपर डायरेक्शन में जो हमको चाहिए हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, वो भी उनको समझ जाता है। और मैं भी बताती हूँ उनको कि एंड व्हाई टू रश फॉर प्रोजेक्ट में, मुझे ऐसा लगता है पहले उनको अवेयरनेस तो कराओ चल क्या रहा है। नहीं तो ये जो अभी हो रहा है बाद में होगा, हो रहा तो है ही। यस यस, एंड क्लाइंट्स डू। ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि मैम आपने अगर हमको 1000 रुपए की चीज दिखाई, लेकिन आप 2000 वालों की भी दिखाओ, फिर हमारे ऊपर है आप खर्चा इतना करना है कि नहीं, पर एग्जैक्टली। एटलीस्ट आप उसको दिखाओ तो सही, बताओ तो सही, ऑप्शंस तो दे दो सारे। ऑप्शंस तो दे दो। एंड आई नेवर प्रेशराइज कि ऐसा ही करो या वैसा ही करो, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही करने बोलूंगी तो फिर वो एक नेगेटिव इंप्रेशन एक नेगेटिव क्रिएट होगा। इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। और ऐसे भी बहुत बार होता है पृथव की मटेरियल वो लाते, आर्किटेक्ट्स कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं उसके ऊपर, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वॉट एवर इट मे बी, उनका मामा चाचा भाई बहन ये उनसे ही इनकी दुकान है, इन्होंने ये लगवाया था। यस यस। पर ठीक है, आई शुड से एवरीथिंग शुड बी टेक इट वेरी पॉजिटिवली। ओके। मतलब क्यों किसी केस में कि ये अच्छा नहीं है या वो कुछ चीजें रहती है, पर कभी कभी नहीं समझ में आता क्लाइंट को, वो इतने आपको ज्यादा एक्सेप्ट उनसे करना। बॉन्ड इतना अच्छा रहता है कि वो चीजें उनको समझ में भी नहीं आती। तो आई डोंट, छोड़ दो इसमें, वी आई थिंक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बी पॉजिटिव,
और मैं बहुत अच्छी से बिहेव करती हूँ एंड दे गिव मी फीडबैक्स कि मैं हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैम आपसे कि आप इतने पॉजिटिवली हर चीज़ को लेके जाएंगे बिकॉज आई हैव टू मेक द जर्नी स्मूथ. वेरी ट्रू. तो मेरे साथ जब काम करेंगे तो लगना चाहिए क्लाइंट को कि मैम ने जो जो गाइड किया या जो हमने सामने पोर्ट्रे किया उस थिंग्स को भी पॉजिटिवली लिया है. तो फिर क्योंकि और बहुत सारी चीज़ है अगर मैं हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान दूंगी तो हाउ कैन आई फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. वेरी ट्रू. तो मैं आई मूव ऑन और नए अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दूँ. मैम कॉस्ट और क्वालिटी हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, कभी साथ में नहीं चलता. अब जो चीज़ क्वालिटी में बहुत अच्छी होगी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, जो शायद उतनी अच्छी ना हो उसकी कॉस्ट कम होगी. तो आप एज ए डिज़ाइनर इस चीज़ को बैलेंस कैसे करते हो कि यार ये कॉस्ट कम है तो क्वालिटी भी कम होगी और कॉस्ट ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़्यादा. नॉट एवरी टाइम Prithvi, यू Okay. आर इनटू प्लाई का ही प्रोडक्ट है तुम्हारे पास तो हर प्लाई तो खराब होता नहीं. अगर कम वाला भी हो तो यू नो Exactly, very मच true. मोर Different बेटर. qualities of. डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं एंड यू टेल मी अब तक 15-20 साल में हमने ऐसा क्या देखा है जो खराब हो रही है चीजें. Exactly. बेसिकली चीजें खराब होने से पहले ही हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है. इफ यू थिंक इन प्रैक्टिकलिटी Renovation आ जाता है फिर. रेनोवेशन आ जाता है. बच्चे छोटे से बड़े हो जाते हैं तो घर चेंज करना पड़ता है. तो प्रोडक्ट आते ही इसीलिए है ताकि वो लंबे समय तक जिए लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है. तो देयर इज नॉट एट ऑल No अ such thing. प्रॉब्लम This इन is द a myth. प्रोडक्ट. हाँ या ऑफ कोर्स. और हर सोना लगाओ तो चीज अच्छी होगी ये नॉट नेसेसरी. Very true. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि बैलेंस होना चाहिए. मत यूज करो ना 150-200 का प्लाई. व्हाई इट इज नेसेसरी. थोड़ा कम में भी कर लो तो उसको कुछ नहीं होना है. Exactly. लेकिन उतना पैसा बचता है तो डेकोर में यूज करो जो चीजें दिखती है जिस चीज को हम फील किया जा Very सकता है. true. तो मेरा हमेशा इंटेंशन वही रहता है कि ट्राई टू बैलेंस Balance. बस सामने वाले सेटिस्फाइड रह जाए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन मैटर्स इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शनैलिटी जो उनको चाहिए वो मेरे तरफ से मिलना चाहिए. दैट्स इट. So while we are into the last segment of this podcast again, one thing which we would want to deliver to the people who are listening to, 2 cents of your journey or your experience or something which you want to share besides what I've asked you about. Yes, I should say you should never rush for the work. That is the first thing. It requires whole lot of patience, perseverance, and consistency in your work, since particularly in this service industry. And कॉस्टिंग के पीछे यही लगाओ वही लगाओ ऐसा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड डोंट compromise with your fees. Nice. The basic thing, don't compromise with you. मैं upfrontly बोल रही हूँ. If the architect is compromising his fees then he is recovering from something else. Understand. So उसका पेट भर जाए इतना उसको दे दो. फिर क्यों वो किसी चीज में नेगेटिविटी डालेगा कि इससे मत करो या उससे मत करो. But I should wholeheartedly recommend clients that do take the vendors and executors from the architects or designers so that आपको flow of work मिल सके. आसान रहे. प्रोडक्ट आपको लाना है आप खुद ला सकते हैं. Ma'am, 2 words for your journey of what it has been with Yogesh Marketing and this whole setup of a podcast. Or how do you feel? If you are really doing well, what should I say? And you have very superb future. And I don't think so. Nobody can, anybody can stop you for in future also. As I said, doing something out of work. It might be a podcast like this, maybe making reel or making marketing. It is the need of the hour. Very true. So otherwise product तो हम अपने बेचने के लिए है ही, सर्विसेज तो है ही. बट उसके अलावा आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, आप पब्लिकली उसको आप नॉलेज शेयरिंग के प्लेटफॉर्म में क्या दे सकते हैं. आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज दैट थिंग. देन विजिबिलिटी मैटर्स. जो दिखता है वही बिकता है. दैट्स द स्टोरी. Thank you so much, Samita ma'am. Your energy, your charm, and the way you put out things, to people, it is amazing. I've always been in awe of everything most of the people in this industry have been, and we are very sure that you'll reach amazing heights in future. Thank you so much for joining in. Thank you so much for your time.
It means the most, man. Thank you. Thank you so much for inviting me here, and all the best to Yogesh Marketing and Pritham, and you will do the wonder. Thank you. No doubt about it.